Assalamu alaikum everyone, this is Baat and I'm live here. Okay, yes, I just got my mic. I thought I didn't put it on. So I'm here live and today I want to discuss something and I hope you might have guessed by the caption. So just let me check out on my Facebook page who is here live so I can just start. Okay, let's see. Let me just check out. Okay, I'm still waiting. Let me just check out. So if there is anyone who's here, do let me know who is live over here so I can just start. Okay. So I'll just start. Okay, so now I can see people. You're coming live. Okay, so who is this? Do let me know in the inbox where you are logged in from. Are you from Karachi or Lahore or Islamabad or any other place or country, wherever you're from, just let me know. Yeah. And also let me know about the caption. What do you think this caption is about? What do I aim to talk about today? So any ideas? Someone? I'm waiting. I'm looking at the inbox. I'm looking at the comment box if there's any comment over here. So just let me know what you think about it. And if no one can guess, then I'm just going to start. Walaikum Assalam Abdul Salam. I hope you're fine. Nasir Khan Muhammad Zai. Hello. Nice to see you here and thanks for joining in and watching my live session. And I guess you are on the top of my screen, so probably in the end I can take you on camera if you want that. Okay, you're from Peshawar. Well, it's nice to have people from different areas and cities as well. Okay, so किसी को कोई अंदाज़ा कि what this topic is about? I'm fine, alhamdulillah, Nasir साहब. Okay, so if anyone has any idea what I plan to talk about, like caption कहता है बात नहीं करनी आती. क्या करें? बात नहीं करनी आती. So caption is very clear. It simply means I want to talk about communication. So देखें ना, if I say everything in English, then you say कि भी आप उर्दू नहीं बोलती. So I thought why not keep a caption which is in Urdu. Okay. So आज basically मैंने बात करनी है कि communication, like I have talked about what is communication. So basically now today I want to talk about कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो you can be a good communicator. और उसमें कौन से ऐसे जो है okay, thank you, you're most welcome नासिर साहब. So उसमें वो like how important is communication and what are the things which you will do तो वो आपकी जो communication है it would be a success. So सबसे पहले तो आपने जो है इस चीज़ पे जो है गौर करना है कि जो communication होती है, जो effective communication होती है, that is the cornerstone for any kind of success. और वो किस तरीके से हो सकती है कि जब आप जो है कम्युनिकेट करेंगे, आप लोगों को अपनी बात जो है समझाने में कामयाब होंगे, तो then you'll be doing justice. Acing Khan, thank you so much for joining in and watching. So you would be doing justice as far as communication is concerned and as far as you want your message to be get into the minds of other people. So अगर आपका message communicate हो जाता है तो then you are successful in delivering whatever you want to do. So this is the beauty of communication कि when you talk it does not matter what you're talking about as long as people are able to understand and they get the gist of what you want to say. That is effective communication. So communication के लिए the number one cornerstone is it has to be effective and it has to be in a way जिससे लोगों को समझ आ जाए. इसके अलावा जो है like अगर हम communication की बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो कि अगर आप कर रहे होंगे तो then you can effectively communicate. जिसमें एक जो चीज़ होती है that is verbal communication. अब verbal communication क्या है? Verbal communication is basically your choice of words.
वट एवर दोज वर्ड्स आर. अब अगेन वही बात आती है, इफ़ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट योर मैसेज, लाइक इफ़ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो वट एवर वर्ड्स और वट एवर सेंटेंसेज आई एम गोइंग टू बी यूज, और वो इन द एंड जो उसका बाय प्रोडक्ट होगा या आउटपुट होगी, दैट वुड बी कम्युनिकेशन. सो वट एवर आई एम गोइंग टू कन्वे, वट एवर वर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज़, अगर आपको वो बात समझ आ जाएगी तो इट मीन्स आई हैव बीन सक्सेसफुल इन कम्युनिकेटिंग इट वर्बली. सो कम्युनिकेशन में जो है इट्स क्योंकि देयर आर मेनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम लाइक वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें हम चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. अब देन अगेन आप ये चीज़ देखेंगे कि हर एक फील्ड की डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है, डिफरेंट जार्गन होती है. व्हेन यू आर इन अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो यू मेक यूज़ ऑफ अ डिफरेंट जार्गन, और प्लस उसमें जो है बॉडी लैंग्वेज भी आ जाती है. देन अगर आप जो है किसी और फील्ड में हैं, से अगर आप लेट्स टेक वेरी सिंपल फील्ड, लाइक अगर आप किसी शॉपकीपर के जाते हैं तो आप जो है शॉपकीपर से कहेंगे कि भाई लाइक उनकी जो शॉप में जो है कोई बेसिक जो है एसेंशियल्स होंगे, जितना दूध डबल रोटी होता है, राइट. तो आप जो है जाएंगे, आप वो चीज़ उठाएंगे, से आपने ब्रेड उठाई है तो आप उनसे पूछेंगे कि भाई इसकी क्या प्राइस है. और देन अगेन वो डिपेंड करता है कि आप जो है अगर लोकल जो है जा रहे शॉपकीपर के, तो देन इट्स नॉट नेसेसरी उनको इंग्लिश आती हो. यू हैव टू कम्युनिकेट इन देयर लैंग्वेज, इन देयर टोन, और जो चीज़ उनको समझ आए. इफ़ लाइक अगर बेसिक शॉपकीपर है एंड दे डोंट इवन अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो उनको उर्दू आती होगी, अगर उर्दू नहीं आती तो पश्तो आती होगी, या कुछ तो आती होगी, और कुछ ना भी आता हो अगर साइन लैंग्वेज से ही आप पूछ लेते हैं. लाइक इफ़ आई जस्ट पिक अप दिस पेन, ठीक है, एंड आई आस्क हिम कि भाई, एंड like I just pinpoint this to him, and like if he's of some other nationality, like he can't speak in Urdu, he can't speak in English, so हो सकता है कि वो जो है कोई पठान भाई हों, कोई कहीं और से हों, और अगर मैं उनको सिर्फ पिन पॉइंट करके पूछती हूँ कि भाई इसकी क्या प्राइस है, तो जस्ट फ्रॉम द जेस्चर्स आई एम कम्युनिकेटिंग, उससे भी उनको समझ आ जाएगा कि ओके ये जो है ना, ये चूँकि ये प्रोडक्ट जो है मेरी शॉप पे पड़ा हुआ है एंड इट इज़ फॉर सेल, तो हो सकता है कि इसकी प्राइस पूछ रही हूँ. तो देन that person would be able to understand. Now this is another way of communication कि आप जो है साइन लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं, आप जो है जस्ट चीज़ को पिन पॉइंट करके भी, क्योंकि कम्युनिकेशन में ना बहुत सी चीज़ें जो है काउंट करती हैं. इट्स अभी चूँकि मैं वर्बल की बात कर रही हूँ तो वर्बल में तो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, बट देन देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ नॉन वर्बल, और नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, या अगर आप जो है साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है जिससे लोग आसानी से जो है उनके लिए अंडरस्टैंड करना आसान होता है कि आप क्या इम्प्लाई करना चाह रहे हैं. सो जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो देन उसमें सर्टेन चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए. लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज में जो है आपके फेस के जेस्चर्स आ जाते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट्स आ जाती हैं, आपके हाथों के इशारे आ जाते हैं, जिससे जो है आप कितने आसानी से अपना मैसेज दूसरे अक्रॉस द बोर्ड कम्युनिकेट कर सकते हो. ये सारे आपके जो है ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, और आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है. लाइक अगर आपके जो है मुंह पे शिकन है, और माथे पे लाइंस चढ़ी हुई हैं, और कटवल आ रहे हैं मुंह पे, और आप जो है कोई चीज़ उठा रहे हो और आप जो है पूछ रहे हो, लाइक इस तरह की आपने कोई शक्ल बनाई हुई है, अब उससे अक्रॉस द बोर्ड क्या इंप्रेशन जाएगा? पहला इंप्रेशन तो ये जाएगा कि भाई ये आज तो हमारा सर फाड़ के ही जाएगी, ठीक है. तो दूसरा पहला इंप्रेशन तो यही होगा ना कि भाई ये तो जो है ना लड़ने के मूड में है, चाहे वो खातून हो चाहे वो बंदा हो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग कि आप लोगों को क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रही हैं. सो इस वजह से जो कम्युनिकेशन है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और कम्युनिकेशन के लिए जो है यानी इट्स नॉट कि मैं कहूँ कि इसमें कोई जो है ना स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो यू विल बी अ गुड कम्युनिकेटर. ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रैक्टिस. आपने अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस में डाल के देखना है, और उन सिचुएशंस में उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्ट करना है. And that is not difficult. You only need practice for being a good communicator, या communication skills को अगर आप improve करना चाहते हैं. Okay, so इसके अलावा जो है like body language
के अलावा जो है अगेन जेस्चर्स भी आ गए, फेशियल एक्सप्रेशंस भी आ गए, पोस्चर ऑफ बॉडी भी आ गया। फिर इसमें एक और चीज़ जो होती है कि आपका आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, आई विल बी लुकिंग इन योर आईज, और जब मैं आपकी आंखों में देखकर आपसे बात कर रही होंगी तो यू वुड बी एग्जैक्टली नोइंग कि व्हाट एम आई सेइंग या व्हाट आई मीन। जैसे आप देखेंगे जब आप जो है, आप में से बहुत से लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में भी गए होंगे, तो वहाँ पर जो आपकी टीचर्स होते हैं, वैसे तो ये है कि ओवरऑल जो है क्लास बहुत ब्रॉड होती है। सो व्हाट द टीचर डज इज़ कि वो किसी एक स्टूडेंट पे जो है, या अगर किसी एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो दे वुड बी टॉकिंग डायरेक्टली टू द स्टूडेंट, लुकिंग इन देयर आइज, रादर देन कि स्टूडेंट जो है सामने खड़ा है और आप जो है टीचर हवाओं में देख रहा है कि भाई अच्छा ठीक है मैं ये जो है बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ। इस तरीके से नहीं होता। व्हेन यू आर आई कॉन्टेक्टिंग विद द अदर पर्सन, तो आपका जो मैसेज है इट इज़ वेरी क्लियर एंड इट गोज आउट क्लियर एंड लाउड। व्हाट यू मीन, आपका मैसेज क्या है, एंड व्हाई आर यू कम्युनिकेटिंग, आपका जो है मकसद क्या है, या आप क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। सो आई कॉन्टैक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन में, टू बी कि आप कम्युनिकेशन किस तरह इम्प्रूव कर सकती हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, राइट। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग इज़ कि जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आप गौर से उसकी बात सुनते हैं। इट्स नॉट दैट कि कोई आपसे बात कर रहा है, लाइक जिस तरह आप हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं आप कैसी हैं, आप सलाम करें और मैं कहूँ कि आई एम जस्ट सरसरा जो है मैं जो हूँ आपको जो है स्किप करती जा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। सो वन टू वन जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, या इवन अगर आप जो है इन अ ग्रुप भी बात करें हो, तो यू हैव टू हैव एन एक्टिव ईयर। इस तरह नहीं है कि आप एक ही बात सुन रहे हैं तो दूसरी की बात इग्नोर कर रही हैं। यू नीड टू लिसन टू ईच एंड एवरी वन। खैर, एथिक्स के कुछ रूल्स होते हैं। व्हेन यू स्टैंडिंग इन अ ग्रुप, तो पहले एक बात करता है, एक बात ख़त्म करता है, तो फिर दूसरा बात करता है। बट देन ये जो एथिक्स हैं ये आप बड़े बच्चों के या बड़े जो होते हैं प्रोफेशनल लोग होते हैं या एज ब्रैकेट में जो बड़े होते हैं, आप उनको उनसे तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट देन अगेन, अगर यू आर टीचिंग अ यंगर लॉट, या अगर आप जो है बच्चों को टीच कर रहे हैं, तो यू कांट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम देम कि आप जो है ना 7-8 साल के बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे एट अ टाइम एक बात करेगा। नो डाउट स्कूल में अच्छी खासी जो है स्ट्रिक्टनेस होती है कि पहले एक बात ख़त्म करेगा तो फिर दूसरा जो है स्टार्ट करेगा। बट स्टिल बच्चे आर बच्चे, यू कांट हैव दोज काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड यू can't apply that to them na. So what you have to do is, उस scenario में you need to adopt certain measures, in the sense you have to be adaptable according to the circumstance. but जब बड़ों की बात आती है तो आमतौर पे वन टू वन कन्वर्सेशन होती है, और उस वन टू वन कन्वर्सेशन में you need to have an active ear, you need to actively listen rather than कि आप passive listening कर रहे हों। और उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं कि अपनी क्लैरिटी के लिए यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, या यू कैन सीक क्लैरिफिकेशन टू गेट एक्यूरेसी या एक्यूरेट क्वेश्चंस, या उनको जो है फीडबैक आप दे सको। सो दिस इज़ एज फार एज एक्टिव लिसनिंग इज़ कंसर्न। अच्छा, देन फिर इसमें जो है एक चीज़ जो आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है कि व्हेन यू आर इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इमोशंस द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। लाइक आपकी क्लास में जो है एक स्टूडेंट है, आपका क्लास फेलो है, एंड आपको पता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। अब बजाय ये कि आप जो है उसको यानी उसको छोड़ दें उसके हालत पे, ठीक है, सो यू वोंट डू दैट, क्योंकि क्लास फेलोज जो है दे आर इन अ वे दे आर मोर लाइक फैमिली। तो आप जो है अपने क्लास फेलोज के साथ जो है ना, आपकी कोशिश यही होगी, और ख़ासतौर पे जब वो घर से दूर होते हैं तो देन उनके मसले मसाइल ज़्यादा बड़े भी होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़, एज अ क्लास फेलो, एज अ गुड फ्रेंड, यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि व्हाट इज़ बॉदरिंग देम, देन यू कैन लिसन टू देम, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो एम्पैथी है वो इसी तरीके से आती है कि यू आर एबल टू फील द फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिससे जो है ना कोई जा रहा हो सकता है, कैन बी एनी वन। It doesn't really matter whether it's a female या it's a man,
सो कोई भी हो सकता है, बट यह कि वो जो फीलिंग होती है, वो जो एहसासात होते हैं, जब आप में वो एहसासात होते हैं तो तब आप जो है अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन दी ह्यूमन लेवल, ठीक है। सो सो दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, फिर इसमें जो है यानी अगेन कम्युनिकेशन में जैसा मैंने आपसे बात की कि भाई यू नीड टू बी अडेप्टेबल, वट एवर योर सिचुएशन इज़ उसके मुताबिक आपने अपने आप को एडजस्ट करना होता है। लाइक व्हेन यू आर गोइंग इन अ यूनिवर्सिटी, लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन Namal as a lecturer, and I was teaching English to the master's students. और ये अलग बात है कि those students they were actually my age bracket, and plus जो है there were many people who were elderly as well, but then the situation required me to act as a teacher, so I had to adapt to that situation, treating them with respect obviously क्योंकि वो मेरे senior थे, they were much more senior than I was, and then एक देखें टीचर की रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, बट टीचर नीड्स टू ट्रीट दी स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट्स when it comes to professionalism, and then again जो एज का तकाजा है उसके मुताबिक भी जो है जो आपकी एथिक्स हैं वो आपको यही सिखाती हैं कि you need to treat everyone equally and it does not matter whatever their age is. So जो सिचुएशन थी I adapted according to the situation, though there were many who were much more elder than me, but then I did not call them uncle, I did not call them chacha ji or baba ji or anything like that. I simply called them by their names. So this is what was required from me at that time. I had to adapt myself according to that circumstance, according to that situation. Similarly, when you are communicating with people, अब हो सकता है कि आपके सामने जो है PM खड़ा हो, so आप जो है you're not going to like it depends आप जो है किस context में खड़े हो. If you are delivering something in your professional mode, then you are going to treat even the PM in your professional mode. Similarly जो है, now this is I'm just giving you examples कि no matter whoever is standing in front of you, you just need to have an effective communication, and whatever that mean of communication is. Israr Ahmed, I know you are here, and मैंने जो है PM की example दी है, मैंने और किसी की example नहीं दी. ओके, सो आपने जो है अपना मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, एंड यू जस्ट हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. अब वो कम्युनिकेशन आपकी फॉर्मल भी हो सकती है, वो इनफॉर्मल भी हो सकती है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. जैसे हम कहते हैं ना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इसी तरीके से जो आपकी कम्युनिकेशन है वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करती है, वट एवर दैट सिचुएशन इज. सिमिलरली आप ये देखते होंगे, इफ़ यू आर इन अ वेरी टेंस सिचुएशन, सो उस टेंस सिचुएशन में आप मजाक नहीं बना सकते, उस टेंस सिचुएशन में आप हंस भी नहीं सकते. सो यू हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम, यू नीड टू बी अ बिट सीरियस, यू नीड टू हैव दैट सेंस टू tackle that situation. So every situation requires you to be a different person and interpret it accordingly, and then use that communication accordingly. So जो हम different words use करते हैं, negotiator, mediator, communicator, facilitator, so these are all forms of communications. So you have to establish your role in different environments and then act accordingly. So ये जो है communication skills की जो है ना, यानी these are the assets कि if you know how to mold yourself according to the circumstances, you can be a very good communicator. अच्छा, देन अगेन इसमें एक और जो चीज़ जो कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यही है कि यू नीड टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड और वो आप इसी तरीके से कर सकेंगे व्हेन यू हैव गुड कम्युनिकेशन, यू विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू दोज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू देम. और जो भी कंसर्न्स होंगे, यू हैव टू take them calmly and be very calm, and you should not leave your ground. ठीक है, you have to be calm in that situation, whatever that is. So conflict resolution जब होती है या conflicts किसी किस्म के होते हैं, most of the time like जिस तरह जो है रॉबरी होती है, या ये है कि कोई डेकोइट्स वगैरह जो है पकड़े जाते हैं. अब मैं क्या देखती हूँ, यानी at times I have observed people कि भाई जब इस किस्म की कोई रॉबरी होती है तो people are very frustrated,
और क्योंकि एक चीज़ होती है ना जो एक चेन में चली होती है, लाइक रॉबरीज का अगर एक सिलसिला स्टार्ट होता है तो आज इस शहर में रॉबरी है, आज इस सेक्टर में रॉबरी है, आज उस सेक्टर में रॉबरी है, तो उससे क्या होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। जब लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं कि वो जो एक आ जाता है, चाहे वो रॉबर हो, डेकोएट हो, कोई भी हो, तो लोगों को सोटू से फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक बहाना मिल जाता है। सो वो बहाने के लिए जो बंदा आया होता है, अब चाहे उसको जो पुलिस ने पकड़ा हो या ना पकड़ा हो, तो लोग पीपल टेंड टू टेक दी थिंग्स इन देयर हैंड्स, और उन चीज़ों को अपने हैंड में लेने के लिए नुकसान होता है, क्योंकि व्हेन दे आर फ्रस्ट्रेटेड तो वो फिर उसको मारेंगे भी, एंड दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर कि भाई इफ़ दे आर गोइंग टू हिट दैट पर्सन नो मैटर हाउ बैड दैट इज़। क्योंकि देखें, इंसाफ करना जो काम है वो जुडिशरी का है, ठीक है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इट इज़ देयर ड्यूटी टू गिव द इफेक्टिव जस्टिस। और किसी लेमैन को, किसी सिटीज़न को यह हक हासिल नहीं होता कि वो जो है जो मुजरिम है उस पर जो है ख़ुद जो है जुल्म करना शुरू कर दे। ठीक है, जो मुजरिम करता है दैट इज़ नॉट राइट एंड आई डू नॉट एग्री विद दैट, बट देन सिटीजन्स को भी ये राइट नहीं होता। देन अगेन यू हैव टू see many things कि as a citizen is it your duty to do that, आपने पकड़ लिया, that is your duty, पर उसके बाद जो है no one has given you the duty कि आप खुद ही जो है ना अदारा बन जाएं और आप जो है जस्टिस करने के लिए जो है ना उसको मारना शुरू करते हैं। सो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उसमें you have to have great nerves, और जितना आप काम होंगे उतना आसानी से आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, और जितना आप जो है गुस्से वाले होंगे और बात बात पे जो है आपका मुंह बन जाता होगा या गुस्सा आ जाता होगा, तो यू वॉन्ट बी एबल टू रिजॉल्व एनी सिचुएशन, और देन जो कम्युनिकेशन है वो धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर gussa and temperament. So the more you are going to be in control of your gussa or emotions, you will be able to resolve the situation. अदरवाइज चीज़ें जो है ना बढ़ जाएंगी और गुस्से लड़ाइयों में चेंज हो जाते हैं, कत्लो गारत में बदल जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। सो जस्ट ट्राई टू कीप योरसेल्फ अलूफ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, देन इसमें एक और जो चीज़ होती है कम्युनिकेशन में, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर या यू वांट टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो यू शुड बी ओपन टू द आइडिया ऑफ हैविंग फीडबैक एंड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। क्योंकि जब आप लोगों से फीडबैक ले रहे होते हैं, लाइक इफ़ आई आस्क यू और प्लस आई आस्क यू एट every session, whatever session I'm conducting, in the end ke bhai what do you have to say about this session, is there anything which is unclear or you want clarity on anything, or are there any points which you want to add other than which I have added. So this is basically I'm trying to take what is your feedback on the session, yeah, what do you think this topic was about, yeah, have I been able to do justice to the topic, yeah, was I clear enough in expressing my message regarding this particular topic, whatever that was. So उसके लिए जो है आप लोगों से फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक के साथ देन पीपल, देयर आर एवरी काइंड ऑफ पीपल, इट्स नॉट दैट कि आप कहेंगे भाई सारे पॉजिटिव मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें। देयर आर मेनी पीपल who would give you who would give you feedback, though it won't be positive feedback, it would be criticism, but always entertain and always go for criticism which is positive. अब positive criticism कौन सा होता है? Positive criticism ये होता है कि you think कि भाई someone has said something और मैसेज दिया है, बट यू थिंक कि भाई अगर उस मैसेज में जो है मज़ीद ये चीज़ें ऐड की जाती तो उसका मज़ा ही आ जाता। सो दिस इज़ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एंड देन इट इज़ अप टू द पर्सन हु इज़ communicating those things, कि how that person is going to take those things. If that person has a growth mindset, तो then that person would not only just listen to those things, but उनको वो जो है अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। Now the other day I gave a session, और उसमें जो है then जैसा मुझे feedback मिलते हैं, there was one person who said कि भाई you need to use spotlights and hanging lights, and then उसके बाद जो है मैंने उनको जो है शेयर की कि भाई these are the accessories which I am using, and it was good of him कि भाई उन्होंने वो suggestion दी, and then what I did was
आई स्टडीड अबाउट डिफरेंट थिंग्स कि भाई लाइटिंग का कौन सा जो है होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, या जहाँ पर मैं बैठ के जो है लाइव वीडियोस करती हूँ उसमें लाइटिंग का क्या इशू है। क्योंकि वन थिंग विच वाज वेरी क्लियर वाज कि जो मेरी राइट हैंड साइड पे ट्यूबलाइट लगी हुई है वॉल पे, इट वाज रिफ्लेक्टिंग टू मच ऑन द शेल्व्स एंड ओवरऑल ऑन द फेस। सो उसमें वो जो है ब्लरी सी इमेज आ जाती थी, बहुत ज़्यादा जो है पीछे हाईलाइट हो जाती थी, विच ऑब्वियसली डिडंट लुक गुड इन द वीडियो। सो व्हाट आई डिड वाज कि भाई मेरे पास जो स्टैंड था, आई जस्ट पुट द स्टैंड अ बिट अबव, और जो साइड से लाइट आ रही थी उसको मैंने जो है थोड़े डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। तो उसका जो है फ़ायदा क्या हुआ कि नाउ यू विल बी इन अ पोजिशन टू सी दी बैकर शेल्फ, और उसमें जो बुक्स पड़ी हुई हैं, और वो जो लाइट फट फट के आ रही थी अब वो फट फट के नहीं आ रही होगी। सो दिस इज़ हाउ यू नो टेक दीज फीडबैक्स, कि whether it's positive feedback, whether it's negative feedback, you just try to improve yourself. So the more you improve yourself, the more better it is for your own personal growth and grooming, as well as कि आप जो communicate करना चाह रहे हैं, it's also good. And plus then you are involving people, or you're involving audience, and you're involving your followers कि who want to see you groom as well, और वो आपको देखना चाहते हैं ग्रूम करते हुए, इसलिए वो आपको ये फीडबैक्स देते हैं, एंड देन इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट रीड आउट सम ऑफ द कमेंट्स ओवर हियर एंड देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। चौधरी इमरान, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। सैयद अब्दुल गफ्फार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। ओके, अच्छा, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक और जो चीज़ आ जाती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कल्चरल सेंसिटिविटी। अब कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है? कल्चरल सेंसिटिविटी ये है कि वी लिव इन अ प्लेस जहाँ पर जो है वी हैव अ रिच एंड डाइवर्स कल्चर। अब इस कल्चर में जो है वी हैव मैनी लैंग्वेजेस, मैनी कल्चर्स, मैनी पीपल फ्रॉम डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड्स एंड प्लेसेस। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि जब हम जो है उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो we have to keep in mind their culture as well. Like if I go towards towards the inner side of Peshawar, ठीक है, तो I won't be going the way I am, क्योंकि this is my dressing in Islamabad. When I'm going to go to Peshawar or KPKP, तो then I would be taking a shawl and a proper shawl जिसमें जो है head भी cover हो और overall it's covered, क्योंकि then I would be going and addressing those people in their environment, and I have to be dressed according to their environment, not according to Islamabad environment. So ये जो होती है cultural sensitivity, it is very important, क्योंकि when you want to communicate with people, you need to understand कि भाई वो किस कल्चर में रह रहे हैं, आप किस कल्चर से आ रहे हैं। चले आप उनकी जो है लैंग्वेज शायद उस तरीके से ना बोल सके, बट यू विल बी स्टिल इन अ वे टू कम्युनिकेट। अगर आप खुद नहीं कम्युनिकेट कर सकते, यू कैन ऑलवेज टेक एन इंटरप्रेटर, या आपके साथ कोई लोकल हो जो कि आपकी जो है ज़ुबान ट्रांसलेट करके उधर लोकल्स को बता सके। बट जो चीज़ जो है, देखिए, इवन अगर आपकी ज़ुबान भी डिफरेंट हो, अगर आपका जो है लिबास दूसरों के लिबास की तरह है जो उनके कल्चर में प्रिवेल करता है, तो देन यू आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। बट ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरी जो ड्रेसिंग है मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, दो मेरी जो ड्रेसिंग है इट्स नॉट बैड, आई एम वेयरिंग अ शलवार कमीज़ एंड अ दुपट्टा, बट येस ये दुपट्टा जो है राइट नाउ इट्स इन माई नेक, बट इफ़ आई मूव टूवर्ड्स द इनर साइड्स ऑफ KPK या बलोचिस्तान या इन एरियाज़ पे, तो आई नो कि उनका जो कल्चर है दैट इज़ यू नीड टू कवर योर सेल्फ, और कुछ एरियाज़ में इट्स द शटल कॉक बुरका आई गेस. So you need to observe these things, and when you're open towards adaptability, you can achieve miracles. So ये तो just मैं communication की बात कर रही हूँ. So cultural sensitivity इस तरीके से होती है, और then you have to be respectful in your communications. Whatever way आप apply कर रहे हैं for communication, it has to be respectful. ठीक है, respectful, you need to यानी क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, नो मैटर आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो. अच्छा, देन आपने जो है कम्युनिकेशन के लिए एक चीज़ इसके जो है यानी
आ जाती है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन. अब ये जिस तरह टेक्नोलॉजी एनहांस होती जाती है, हो रही है, एडवांसमेंट भी आ रही है. नाउ द वे आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, दिस इज़ अ वर्चुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन. And then there are other ways. If I go in the field, so I am communicating with people directly face to face, so that is also communication. और उसमें भी जो है आपकी skills बहुत ज़्यादा depend करेंगी. जिस तरह virtual में जो है आपकी skills depend करती हैं. virtual में though I cannot see you people, but still I can still interpret many of you and many of what you people think through your comments. So this is virtual communication and this is the advancement of technology. But then when you are in the field, तो आपका overall जो scenario होता है वो change हो जाता है. Then जो ज़्यादा जो है चीज़ें काम करती हैं rather than your verbal communication, yes it does work, but non-verbal communication उधर बहुत ज़्यादा काम करती है. So you have to be very careful about using your eyes, या आपके जो है फेस के जेस्चर, या आपके वो जो माथे पे कटवल आ जाते हैं, या आपके हाथों के एक्शंस. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग verbally in the field, direct face to face. Okay, so you have to maintain a balance, चाहे आप वर्चुअली कर रहे हो या चाहे आप फेस टू फेस कर रहे हो. देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन के लिए कि आप उसको इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, कि यू नीड टू कम्युनिकेट यूर सेल्फ इन द पब्लिक, जिसको हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं. व्हेन यू आर स्पीकिंग इन द पब्लिक, आप देखेंगे कि आपके जो फियर्स हैं ना वो रिलीज़ हो जाएंगे. लाइक अगर आप जो है मोस्ट ऑफ यू हु हैव गॉन इन यूनिवर्सिटीज़, या इवन अभी भी अगर आप जो सेमिनार्स में जाते हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं एज अ गेस्ट स्पीकर जाते हैं, वट एवर द सिनेरियो इज़, अगर कहीं पर भी जाते हैं, या इवन अगर आप अपने घर का ही देख लें कि घर में जो है वैसे आप एज अ फैमिली तो बैठ के बात कर सकते हैं, बट यह है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो हाउ वुड यू बी टॉकिंग टू देम. डू यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप उनसे किसी भी टॉपिक पे बात करना शुरू कर दें, या आप वहाँ पर चुप करके बैठ जाएंगे कि जी मैंने तो बात नहीं करनी, मेरे से बात नहीं होती. सो अगर आप बात नहीं करेंगे डिफरेंट लोगों के साथ, तो आपकी वो जो झिझक है बात करने की वो ख़त्म नहीं होगी. कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट overcoming your fears of shyness, ठीक है, not talking, not having that confidence about talking to other people. So ये कि you need to have confidence in yourself, you need to practice public speaking, चाहे वो public में हो चाहे वो घर में हो. And the best way जिसमें you can improve your skills is just to stand in front of the mirror and just say a few sentences. और उसमें भी आप देखेंगे कि आपका confidence level कितना boost होगा. Then you can always ask your friends कि भी I want to improve my skills, so आपके साथ मैं जो है इंग्लिश में बात कर लूँ. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या अगर आप कोई और लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, you can always talk to them. And then one of the effective ways is जिससे आपकी झिझक निकल सकती है, you can always use social media, और वहाँ पर डिफरेंट लोगों से जो है रैंडमली बात करना शुरू कर दें. सो जब आप रैंडमली लोगों से बात करेंगे तो उससे भी आपकी जो झिझक है वो बहुत हद तक निकल जाएगी. सो यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस थिंग. एंड देन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जितना आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप स्किल्स को होन अप करेंगे, चाहे वो वर्बल है, चाहे वो चाहे वो नॉन वर्बल है, वट एवर द कम्युनिकेशन इज़, तो उसमें आपके जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होती जाएगी. एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इट्स एन एसेट ऑफ लाइफ. सो जब तक आप जो है कब्र में नहीं जाते, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यू कीप ऑन लर्निंग एंड यू कीप ऑन लर्निंग एंड डिस्कवरिंग योर सेल्फ, यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग वेरियस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, and you just keep on communicating with people of all backgrounds, irrespective of कि वो आपकी फील्ड के हैं या नहीं हैं, या irrespective they are civilians, irrespective they are military, irrespective they are doctors or engineers, whichever field they are from, you can always communicate with them. So the more you are going to communicate, the more improvement you are going to be seeing in your conversation and communication. So this is what I wanted to discuss with you today regarding communication. So अब भी अगर कोई कहे कि बात नहीं करनी आती, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ, फिर मैं यही कह सकती हूँ कि फिर आप इस सेशन को दोबारा सुनें, ठीक है, और दोबारा बैठ के देखें. सो जब ये सेशन एंड हो तो आप ये ना कह सकें कि बात नहीं करनी आती, क्योंकि बात हर किसी को करनी आती है. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू लर्न सर्टेन थिंग्स
about communicating, about communication from with different people. So बात, और अब जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस these things even just for a week, लेट मी अश्योर यू, आप जो है ना फिर दोबारा नहीं कहेंगे कि जी बात करनी नहीं आती, क्योंकि फिर आपको बहुत अच्छी बात करनी आएगी. इनफैक्ट आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बात कर सकेंगे. So now let me see who I can bring on camera. If anyone can come on camera. Wasif? No, I can't add you on camera. Yes, मैंने जैसे आपको कल ही बताया था कि आप लोगों को कैमरा पे लाने के लिए यू हैव टू बी सीन ऑन द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. सो अगर आप मेरी स्क्रीन पे जो है कैमरे में नहीं ऑप्शन नज़र आ रही, तो आई कैन नॉट ब्रिंग यू ऑन कैमरा. ओके, येस, नाउ आई कैन सी वासेव. आई जस्ट ट्राई, लेट्स सी. ओके, चलें जी, आई कांट ऐड यू. सो अगर आप स्क्रीन पे आ भी जाती हैं तो आई कांट ऐड यू, बट देन अगेन इफ़ यू आर शाय, then obviously no one would want to come on camera. Otherwise, when you're ready, I can bring you. No issues. Okay, so let me see. Israr. Okay. So far जो है I can't bring anyone on camera. And that would be all for today. If you have any suggestions or if you have any comments, I'll be looking forward to your comments and your feedback, whatever they are. Do let me know. You can ping me in my messenger, you can ping me in the inbox, whatever your queries are, I'll be addressing those queries as well. So कल दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ. And tomorrow at 8 p.m. I'm going to have a podcast with a very lovely personality, and I would want you to join that podcast. It's going to be streamed via StreamYard on Facebook or YouTube pe, so obviously it would be uploaded there, but you can join at 8 p.m. on Facebook. So I'll just be sharing the post by the end of this day, and then obviously you can join me tomorrow at 8 p.m. but at 6 p.m. I'm going to come live and give my session, whatever topic that is. So I'll be discussing that. Till tomorrow, bye bye and take care. Allah Hafiz.